So today we will start with the preliminary points of Indian Evidence Act. So you must first remember that even before starting reading the Bare Act provisions, I want to tell you some of the practical aspects and some of the real aspects, the conceptual points that lie within the Indian Evidence Act but are not expressly said so by the Indian Evidence Act. So consider the coming two lectures as the preliminary concepts on Indian Evidence Act. It is a brief overview on the concepts that lie within the Indian Evidence Act. So in the preliminary concepts lecture, we will deal with some of the main points of cardinal rules of criminal jurisprudence. We will deal with the classes of witnesses, types of evidences, etc. Alright, these are some of the preliminary points that you should be aware of even before starting the Indian Evidence Act. So, let me just first tell you the cardinal rule of criminal jurisprudence. The first principle of criminal jurisprudence is there are primarily three cardinal rules of criminal jurisprudence. So, the first rule of criminal jurisprudence is that it is the duty of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt. That is the first principle. Second principle is that in a criminal trial, the accused must be presumed to be innocent until he is proven to be guilty. And the third principle is that the onus of the prosecution never shifts. Always remember that. You can add a fourth principle to this point, that if two views are possible, that the judge is confused that whether in a criminal trial I should convict the accused or I should acquit the accused. So the judge will always follow the view which acquits the accused. Alright. So when two views are possible, it is better to acquit than to convict. You have to be very clear about that. These three cardinal rules form the very bedrock of criminal jurisprudence in India. Alright. So every criminal trial that you will see inside a courtroom is being governed by these cardinal rules that I just mentioned. Alright. The next point that I would like to discuss with you is that whether exhibiting a document is in evidence dispenses with the proof of the document, or in other words, will exhibiting a document in evidence will amount to proof of the document? The answer is no. Always remember that. In exams such as Delhi Judicial Service, which primarily relies on the practical aspects, they will always question you regarding these practical things. Alright, so let me tell you at the very outset that admission of a document in evidence is not to be confused with the proof of the document. You should be very clear about that. When the court is called upon to examine the admissibility of a document, it concentrates only on the document. When it is called upon to form a judicial opinion whether a document has been proved, disproved or not proved, the court will not look at the document alone or only at the statement of the witness standing in the box. It would take into the consideration probabilities of the case as emerging from the whole record. As opposed to this, the marking of a document as an exhibit in any manner whatsoever, be it used by alphabets, by numbers, is only for the purpose of identification. Marking of a document as exhibit is only for the purpose of identification. Alright. Endorsement of an exhibit number on a document has no relation with its proof. Neither marking of an exhibit number can be postponed till the document has been held to be proved, nor the document can be held to have been proved merely because it is marked as an exhibit. This is the settled position of law. So please remember this point, because a conceptual question came in Delhi Judicial Service prelims in 2018, where they gave you a problem. In Delhi Judicial Service prelims, they have a trend of giving you problems in prelims itself. Alright, they give you fact-based question. So there a question came regarding exhibition and proof of documents. So they gave a problem. Almost everybody that I knew gave a wrong answer to that. Why? Because they weren't aware about the practical procedures. And most books will not tell you about this. Alright. It is only when you go to the court then you realize that exhibiting a document
or admission of a document in evidence is not to be confused with the proof of the document. You should be very aware about that. Alright. Exhibition of a document will not amount to proof of the document. I cannot stress this enough. Now let me tell you about some illustrative different forms of evidence that you might see in Indian Evidence Act. First is oral evidence. Alright. Which section 59 and section 60 of the Evidence Act deals with it. It generally says that oral evidence in all cases, whatever it must be direct. Alright. That is the principle of section 60. So, in a very brief way, let me tell you that oral evidence is that evidence which the observer has directly observed or has directly seen or felt. Alright. That is to say that if oral evidence refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of the person who saw it. If it refers to the fact which could be heard, it must be evidence of the witness who heard it. If it refers to a fact which could be perceived by any other sense in any other manner, then it must be evidence of a witness who say he perceived it by that sense or in that manner. When you compare this with the section 3 of the Indian Evidence Act, which is the interpretation clause, there is a definition of evidence has been given, but it is an inclusive definition. It says evidence means and includes all statement which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. Alright. So when you are reading about oral evidence, you read section 3 interpretation clause with section 59 and 60. Alright, it is very important. The most important point in this is section 59 and 60. Secondly, Evidence Act also prescribes that all documents including electronic records produced for the inspection of the court would be termed as documentary evidence. Now, in regard to documentary evidence, we have first primary evidence which is related to a document, which section 62 of the Indian Evidence Act defined. It is the topmost class of evidence, or it can even be called the best evidence. So a primary evidence implies that the main document, the original document itself, is called for the assessment before the court. So let us suppose we have two documents. One is the original, other is the photocopy of the original. So the original document would be termed as primary evidence. If the original document is produced before the court, that would be termed as primary evidence. However, where the secondary evidence is produced, like in the very illustration, let us suppose the photocopy of the original has been produced, then in that situation, the document that has been produced before the court would be called the secondary evidence. The photocopy of the original document would be called secondary evidence. It is evidence that possesses an auxiliary position. You should remember that. It is the evidence that on whose introduction it is felt that better evidence yet stays and can be created. But since circumstances do not allow the best evidence, that is the primary document, to be produced before the court, then in those situations court allows the secondary evidence to be produced before the court. Alright. Now regarding secondary evidence, we have section 63 of the Indian Evidence Act, and cases in which secondary evidence can be given is under section 65 of the Indian Evidence Act. Alright. And section 65 of the Indian Evidence Act should be read with section 66 of the Indian Evidence Act, which requires rules as to notice to produce. Secondary evidence to the contents of the documents which are referred in section 65 clause A requires a notice to be given unless there are some circumstances which falls within section 66 which dispenses with the notice. We'll come to that later. Right now we are dealing with the preliminary points. We are dealing with the preliminary concepts that you should be aware of. Alright, we are not discussing anything in detail. We are having a brief overview of the entire Evidence Act and the concepts that lay within it. Now there is also electronic evidence, and electronic evidences are proved in accordance with section
65A and 65B, which decide 65B is about the admissibility of the electronic record and 65A are about special provisions as to evidence relating to electronic record. So 65A and 65B are the primary sections which will govern the admissibility of the electronic record. Now these two sections, 65A and 65B, are read with section 22A of the Indian Evidence Act. It is very important. Now 22A says oral admissions as to contents of the electronic record are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced is in question. Remember, those two sections are read with section 22A. When we will be dealing with electronic evidence, then you would realize that the Supreme Court has held section 22A, 65A and 65B as the complete code within itself. Alright. Now next point that we come to is real evidence. Now what is real evidence? Real evidence implies a genuine or material evidence. Real evidence is sometimes also called material evidence. Now what is it? It is the genuine evidence of a reality which is brought to information to the court, and such information is determined by the assessment of the physical article produced before the court and not by the data which is got from the observer or from an expert witness or from the record. So let me give you an illustration regarding that. If let us suppose that in a murder case a knife has been recovered, alright, so the knife would be termed as a real or material evidence. Now let me tell you that it is not just confined to the articles that are recovered in a murder case. You should be very clear about that. Within the ambit of real evidence, even the content of even the conduct of the observer, the conduct of the gatherings, the article that was subject of the offense, or the article which was used in commission of the offense, both are relevant. So in a certain sense, when the material article is itself produced for the assessment before the court, that is termed as real evidence or material evidence. Now where is that mentioned? If you look at section 60, there is a proviso there. It says, provided also that if the oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document. So it should be important that it should be other than a document. That material thing should not be a document. Then it says, section 60, that the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. So the court inspects that material thing or article and determines and assesses it, that what is its evidentiary value. These things are called real or material evidence. You should be very clear about that. It is very important. You know, Evidence Act doesn't expressly tells you, but these things are there. Next point is hearsay evidence. Now I think you should be very aware about that hearsay evidence is powerless evidence and the court generally deems it irrelevant, although there are exceptions to hearsay evidence. But generally, hearsay evidence is not relevant. So what is the general definition of hearsay evidence? Now, hearsay evidence is the evidence of an observer who has not seen the act, or who has not heard the act, or who has not felt the fact which is subject of an inquiry before the court, as section 60 mandates. Section 60 क्या कहता है आपसे? It says that the oral evidence must be direct. So if the oral evidence is not direct, it has been heard from the second hand or the third hand sources or from the newspaper reports, then that is not the direct evidence. That is a hearsay evidence. Now let me tell you at the very beginning that there are exceptions to the hearsay rule under Indian Evidence Act. We'll come to that and I will be telling you what are the exceptions of hearsay evidence. But for now, you should remember the general rule. Always remember that the general rules are to be mentioned first and then follows the exception. So the general rule is that the hearsay evidence is not admissible and it is not relevant. Okay. Where do we gather that principle from? We gather that principle from section 60 of the Indian Evidence Act, which requires the oral evidence to be direct. What does it say? It says if
the oral evidence refers to a fact which could be seen, it must be the witness, it must be the evidence of the witness who saw it. If it refers to a fact which could be heard, then it must be evidence of the witness who heard it. If it refers to a fact which could be perceived by any other sense, then it must be evidence of the witness who says he perceived it by that sense. Alright, these are the requirements. So in all these things you can see that the Evidence Act is asking for the person who has directly witnessed or heard such things. It is not saying that a second hand or a third hand source is sufficient. It is saying that it should be direct. Alright, that is why in the grand scheme of Indian Evidence Act, hearsay evidence is irrelevant generally. However, there are well recognized exceptions to hearsay evidence. You have expert opinion, you have dying declarations, you have res geste rule. These are exceptions to hearsay evidence. Now, I am not exhaustively telling you about that. I am just giving you an illustration. Right now, we are just concerned about some of the preliminary concepts that lie within the Evidence Act. Now, next evidence is judicial evidence, which is the evidence which is got by the official courtroom in proof or disproof of the realities before them. It is also called legal evidence. So whenever a witness comes before the court and deposes as to what he saw or what he heard, and whatever narrative that he gives to the court, or whatever the evidence that he gives to the court, and that is put to the assessment by the court, then that is termed as judicial evidence. So let us suppose if the accused directly confesses before the court that he committed a particular crime, then that would be called a judicial confession. It is also a judicial evidence. However, when the accused person, let us suppose, confesses to a third person that he committed a particular crime, that is an extrajudicial confession, then that would be called a non-judicial evidence. So any admission made by a person outside the court to any other individual would be termed as non-judicial evidence, as it has not been given to the court. Okay, that is the non-judicial evidence. So judicial evidence, you understand, evidence that is given in the court. Non-judicial evidence, you understand, evidence given outside the court. Then we come to the point of direct evidence. Now what is direct evidence? Now direct evidence is either immediate or circuitous. Direct evidence is that evidence which is significant for the choice of issue. Alright. So let us suppose a witness saw A murdering B. So here, if such witness deposes before the court, his evidence is direct evidence. Alright. Because he directly witnessed such murder, and the court and the authorities will term his evidence as direct evidence. Now that is fairly simplistic to understand. So let me tell you that these brief divisions that I have just told you often come in exam. So all the time students are confused that what is direct evidence, what is judicial evidence, what is non-judicial evidence. They think that this is something very different or something very complex. It is not. These are very simple concepts that are being asked by the examiners, and they change the terminology. Alright, so you should remember, direct evidence is that evidence which is witnessed by the witness himself. Alright, जो उसने सीधे सामने देखा और वही आके कोर्ट में उसने बताया, वो उसका डायरेक्ट एविडेंस है. अब इसमें हियरिंग वाली पार्ट भी आ जाता है और फीलिंग वाला पार्ट भी आ जाता है. ठीक है. सो डायरेक्ट एविडेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस. कोर्ट बहुत वैल्यू देता है डायरेक्ट एविडेंस को. नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एविडेंस. सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एविडेंस है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत होगी, circumstantial evidence. 80% of the convictions and 80% of the cases that are brought before the court are circumstantial in nature. वहाँ पे डायरेक्ट विटनेस अवेलेबल नहीं होता, और अगर मान लीजिए डायरेक्ट विटनेस है भी तो वो कोर्ट में आता नहीं है. ऑलराइट, कभी बताया नहीं जाता कि कोर्ट में कि कोई डायरेक्ट एविडेंस है. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही केस को प्रूव या डिसप्रूव होल्ड करना होता है. ठीक है. तो अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के 5 प्रिंसिपल्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, विच इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल, that the accused must be
not merely may be guilty before the court. Before holding a conviction based on circumstantial evidence, the primary principle is that the accused must be not merely may be guilty before a court, but court must be certain that he must be guilty. तो प्रिंसिपल क्या है प्राइमरी, कि कोर्ट के दिमाग में जब अक्यूज को कन्विक्ट करना है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे, तो उसके दिमाग में मे बी गिल्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, मस्ट बी गिल्टी का कंसेप्ट होना चाहिए. ठीक है, तो जो दोनों के बीच में गैप है ना, मे बी गिल्टी से मस्ट बी गिल्टी का, ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मे बी गिल्टी में वेग, कंजेक्चर, सस्पिशन सब आ जाता है. दैट इज नॉट एनफ टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से मैंडेट दे रखा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कन्विक्ट करना है तो ट्रायल कोर्ट्स को या जजेस को हमेशा इस बात से कंसर्न होना होगा कि दे आर कन्विंस्ड दैट द अक्यूज्ड मस्ट बी गिल्टी, नॉट मे बी गिल्टी. तो वेग, कंजेक्चर, सस्पिशंस या aspersions would not amount sufficient evidence. There has to be hard, concrete chain of circumstances which directly points towards the guilt of the accused. So that is the primary principle. Now the second principle, the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. That is to say that they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty. टू व्यूज़ पॉसिबल नहीं होने चाहिए. तो जो फैक्ट जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एस्टैब्लिश्ड हैं वो एक चेन की तरह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इशारा करें कि अक्यूज्ड गिल्टी है, ये नहीं कि अक्यूज्ड इनोसेंट भी हो सकता है, वरना फिर फेल कर जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का टेस्ट. सो देयर हैज़ टू बी only one viewpoint that is possible with the facts established that the accused is guilty. यही hypothesis होनी चाहिए. Third is circumstances should be of conclusive nature and tendency. तो जितने भी circumstances और fact establish हो रहे हैं वो conclusive होने चाहिए, vague नहीं होने चाहिए. Fourth principle is that it should exclude every possible hypothesis except that the one to be proved. And fifth principle is that there must be a chain of evidence so complete as to not leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show in all human probability that the act must have been done by the accused. These are 5 golden principles which are also called the Panchsheel of proof of a case based on circumstantial evidence. Now this is the principle that has been held by Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra, which was decided on 17th July 1984. Now let me tell you that Supreme Court didn't enunciate these principles for the first time in this case. There were also cases like Hanuman Govind Narjundkar versus State of Madhya Pradesh, where also Supreme Court talked about the points of circumstantial evidence. But since Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra is the most famous case on this point, I want you to remember this case. Alright, whenever you are writing about the circumstantial evidence, you can quote Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra, and if you feel more academic, you can also quote Hanuman Govind Narjundkar versus State of Madhya Pradesh if you so want. Alright, along with this case. But this case is essential. Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra is very essential for you to mention. So what are the 5 points that we gather? First, that the accused must be guilty, not merely may be guilty. So the vague conjectures and suspicions are out of the consideration of the court. Second is, the facts so established should be consistent with only one hypothesis, that is the guilt of the accused. Third is, circumstances which are established should be of conclusive nature and tendency. Fourth is, they should exclude all possible hypotheses except the one to be proved. Okay, what is the one to be proved? That is the guilt of the accused. Fifth is that the chain of evidence should be so complete as to not leave any reasonable grounds for the conclusion that the accused person is innocent. ये बिल्कुल भी नहीं कोर्ट के दिमाग में आना चाहिए. अगर आ गया तो circumstantial evidence से conviction नहीं हो सकता. Always remember, if the two views are possible, जो cardinal rule है criminal law का, if two views are possible, then the court will always acquit.
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस कैसे बेस हो सकता है? जान लीजिए, जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जहाँ पे आई विटनेस नहीं है, मतलब वो केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है। ऑलराइट, तो ये 80% क्रिमिनल ट्रायल्स में आप देखेंगे कि चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव की जा रही हैं। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म। अब इसमें आपको मेडिकल रिपोर्ट से या लास्ट सीन थ्योरी से कन्विक्ट करना, या बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं कि लेट अस सपोज अक्यूज्ड का डीएनए सैंपल उस पार्ट पे मौजूद था, सीन ऑफ क्राइम पे, और ये मोटिव दिखाना कि अक्यूज्ड की एनिमिटी थी डिसीज्ड पर्सन से, फिर दिखाना कॉल रिकॉर्ड्स के थ्रू कि जिस टाइम पे डिसीज्ड की हत्या हुई तो कॉल रिकॉर्ड से ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो अक्यूज था उसी एरिया में था। फिर ये दिखाना कि अक्यूज्ड ने रिसेंटली डिसीज्ड को जान से मारने की धमकी दी थी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में लिंक बना के जाती हैं। जब मैं आपको असाइनमेंट एक्सरसाइजेस दूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर जब आप लॉ अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 5 प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये बहुत एसेंशियल है इन ऑर्डर टू सिक्योर कन्विक्शन इन अ केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऑलराइट, इट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। On this point, Hanuman Govind Arjunkar also mentioned that at the end of the day, there has to be a chain of evidence so complete as to not leave any sensible ground for the conclusion that the accused is innocent. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अक्यूज्ड पक्का क्विट होगा। द अक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड देन, और बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगर कोर्ट के दिमाग में 2 व्यूज पॉसिबल हो गए तो बिल्कुल भी अक्यूज कन्विक्ट नहीं करेगा, अक्यूज को कोर्ट कन्विक्शन नहीं देगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट क्रिमिनल ट्रायल्स जो हैं और आपका जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्रिमिनल ट्रायल का आपको कार्डिनल रूल ध्यान रखना है, और ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको हमेशा दिमाग में रखने होते हैं व्हेन एवर यू आर डिसाइडिंग अ केस ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरप्ले बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो क्यों कोर्ट कह रहा है आपसे कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस टोटली कंप्लीट होनी चाहिए, सर्कमस्टेंसेस कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, एक ही हिपोथेसिस पॉसिबल होनी चाहिए कि अक्यूज्ड इज़ गिल्टी, और हिपोथेसिस भी ऐसी हो कि ही मस्ट बी गिल्टी नॉट मे बी गिल्टी। तो वे कंजेस्चर्स और सस्पिशन से काम नहीं चलेगा। क्यों ऐसा कह रहा है? वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि कार्डिनल रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आपसे कहता है कि पहली बात, बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रोसिक्यूशन पे वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का है। तो अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं कर पाता है तो इसका मतलब 2 व्यूज़ पॉसिबल होंगे, है ना? तो इसमें अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया जाएगा। अब लेट अस सपोज वो ऐसा एविडेंस देता है जहाँ पे कोर्ट के दिमाग में डाउट आ रहा है और 2 व्यू बन रहे हैं, तब भी कोर्ट अक्विट कर देगा। तीसरा चीज़, ओनस कभी शिफ्ट नहीं करता है, ओनस हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है। मेन बर्डन टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। और लास्टली क्या है, अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना? ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होता है। मतलब लोग रियलाइज नहीं करते हैं, पर क्रिमिनल ट्रायल में व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट इनसाइड द कोर्ट रूम, देन यू रियलाइज दैट दिस प्रिजम्पशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इसको आप बड़े आराम से डिस्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तभी तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी ये बर्डन लगाया होता है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना है और हम तो मान के चल रहे हैं कि अक्यूज इनोसेंट है। ठीक है, दैट इज़ वाई। तो इन रूल्स के बीच और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूल्स के बीच में बहुत अच्छा इंटरप्ले है। सो वेन एवर यू आर डिसाइडिंग अ केस विच इज़ बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यू हैव टू बी वेरी श्योर टू मैंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो चाहे आप प्रैक्टिस में हो एज अ डिफेंस लॉयर, या आप दिल्ली जुडिशल सर्विस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, या आप कहीं पे रूल्स लिख रहे हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थियोरेटिकल स्टेट्स में, तो आपको इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पोजीशन ऑफ विटनेस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि विटनेस होता क्या है। ठीक है, अब हमने एविडेंस के छोटे मोटे रूल्स डील कर लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अब मैं बताता हूँ पोजीशन ऑफ विटनेस। तो देखिए, पहले तो बात आप जान लीजिए
कि विटनेस इन अ क्रिमिनल ट्रायल्स प्लेज अ पिवटल रोल इन डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ द केस। अब CRPC ने कहीं नहीं डिफाइन किया है विटनेस क्या होता है, ना एविडेंस एक्ट ने डिफाइन किया है विटनेस क्या होता है। उन्होंने बस ये बताया कि विटनेस इज देयर बट दे हैव नॉट डिफाइंड इट। तो एक बहुत ही फेमस कोट है बेंथम का। He said that witnesses are the eyes and ears of justice. And in accordance with the Black's Law Dictionary, witness is the one who sees, knows, or vouches for something, or one who gives testimony under oath or affirmation in person, or by oral or written deposition, or by affidavit. ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइन करती है कि विटनेस क्या होता है। अब मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि अ विटनेस में बी डिफाइंड एज द वन वो गिव्स एविडेंस इन अ केस एंड इंडिफरेंट पर्सन टू ईच पार्टी सॉन टू स्पीक द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। ठीक है, ये एक विटनेस की एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना पसंद करूँगा। लेकिन अभी जैसे आपने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में एफिडेविट का मेंशन सुना, ध्यान रखिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एफिडेविट को एविडेंस नहीं मानती, ये बात याद रखिएगा आप। बिकॉज इफ यू लुक एट सेक्शन 1 इट सेज दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल अदर देन द कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, but not to affidavits presented to any court or officer, nor to proceeding before an arbitrator। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपनी बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आता है, ये बहुत बेसिक भी क्वेश्चन है, पर ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट्स को जनरली एविडेंस नहीं माना जाता अनलेस एंड ऑफ कोर्स CPC या CRPC कह दे कि इन सिचुएशंस में एविडेंस माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि CPC और CRPC या कोई भी अदर स्पेशल स्टैट्यूट एक्सेप्शन बना सकती है इस बात पे। ठीक है, लेकिन जब हम एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं तो एविडेंस एक्ट में एफिडेविट और प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर वुड नॉट बी टर्म्ड एज एविडेंस। However, let me just mention you one of the exceptions that under CPC Civil Procedure Code Order 18 Rule 4 which requires examination in chief to be on affidavit, that would be treated as evidence, क्योंकि वहाँ पे CPC खुद कह रही है कि वो examination evidence पे लिया जाएगा। So that is one of the exceptions to this principle। तो ध्यान रखिएगा कोई भी अदर स्टैट्यूट एक्सेप्शन बना सकती है, बट जनरली एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे, एफिडेविट एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एविडेंस नहीं माना जाता। देखिए इस पे केस लॉ मुझे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट मी जस्ट टेल यू अ प्रिंसिपल दैट फॉर एन एफिडेविट टू बी टर्म्ड एज एविडेंस it has to required that the same is filed either at the instance or under the direction of the court or any law specifically permits for the proof of anything by affidavit. It is only in those situations affidavit will be termed as evidence. Otherwise, affidavit will not be termed as evidence at all. At this point, you can refer to Ayub Khan, Noor Khan Pathan versus State of Maharashtra, 2013, volume number 4, Supreme Court cases, page number 465. It was reported there. Always remember that when we mention dates such as 14th July 2020 etc etc, so we are talking about the date on which the judgment is decided. But when we are mentioning citations such as AIR, SSC or Manupatra, we always use the term that it was reported there, not decided. ठीक है, डिसाइडेड में आप हमेशा उस दिन की डेट यूज़ करते हैं जो जजमेंट में लिखी है, और जब एसएससी का साइटेशन यूज़ करते हैं या एआरआर का साइटेशन यूज़ करते हैं यू ऑलवेज मेंशन द रिपोर्ट दैट इट वाज रिपोर्टेड देयर। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो नाउ वी कम टू दी सम ऑफ दी काइंड्स ऑफ विटनेसेस। अब देखिए हम ब्रीफ में डील करेंगे चाइल्ड विटनेसेस और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा अपने में बड़ा टॉपिक है, सेक्शन 118 से डील करता है, लेकिन ब्रीफ ओवरव्यू तो देना ही है, तो चाइल्ड विटनेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
देखिए चाइल्ड विटनेस, if he is competent to depose to the facts, then such evidence will form the basis of conviction. In other words, even in the absence of oath, the evidence of the child witness can be construed under section 118 of the Indian Evidence Act, provided that such witness is able to understand the questions and give rational answers to them. Now, the evidence of the child witness and the credibility thereof would depend upon the fact and circumstances of each case. There is not a cut and right formula. All that the section 118 requires is that whoever is testifying before the court, they have to have the capacity to understand the questions put to them and have the capacity to give rational answers to them, unless they are prevented to do so by tender years, extreme old age, disease, whether of body, mind or other kind, etc. Only in that situations they will not be held to be competent to testify. But if they are competent to understand the question put to them and are capable of giving rational answers to them, then they are competent witnesses in the eyes of law. Similarly, if the child is competent to depose, is capable of understanding the questions put to them and is capable of giving rational answers to them, then he would be what? He would be a competent witness. Alright. So for every reliable witness, it is his capacity to understand and explain what he wants to express. Testimony of the child in the similar sense is also reliable if he easily understands the question and gives rational replies to each of the questions. Now, this, even though is the position of law, in practice the testimony of the child witness is only accepted after great care and caution. So when a witness of tender years is deposing before the court, ordinarily the court holds a preliminary examination of such witness in order to determine his mental competency to depose before the court. However, always assume that in all cases it doesn't mean that if the preliminary examination of such child is not held, then the evidence becomes inadmissible. No, that is not the case. But generally what the court does, that the court, asks such child some preliminary questions in order to determine the competency of the mind and in order to make sure that the child has not been tutored, because that is the most specific problem with the children. Because often they are tutored by the prosecutors, police or even their parents. So in those situations, in order to make sure that the child has the capacity to understand the question, has the capacity to properly depose before the court will ask some general preliminary questions to the child in order to just make sure that the child is capable of giving rational answers and is capable of understanding the questions. Alright. And when the court is, as a general rule, satisfied that the child is competent in these regards, then of course it can use the evidence of the child to convict the accused person. Always remember that the child witness has some of the nuances. We'll deal with that in detail. I'm just telling you about the general rule. Now on this point, let me just tell you one brief case law. That is state of Madhya Pradesh versus V. Ramesh. The state of Madhya Pradesh versus Ramesh and another. It was reported in 2011, volume number 3, scale, page number 619. And in this case, Supreme Court dealt with the entire catena of judgments and held that while examining the law, the court emphasized that the deposition of the child witness may require corroboration, but in case his deposition inspires confidence of the court and there is no embellishment or improvement therein, the court may rely upon his evidence. If there is evidence on record to show that the child has been tutored, then the court can reject his testimony either partly or fully. ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. इनफैक्ट अगर कभी भी शॉर्ट नोट आ गया चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को लेके, जैसा कि अक्सर आता है, तो आप इतना ही लिख के आपका काम चल सकता है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इफ़ यू आर केपेबल ऑफ राइटिंग दिस, क्योंकि आपने जनरल रूल भी कवर कर लिया और आपने ये भी कवर कर लिया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जनरली कोर्ट कॉशियस रहता है चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी पे, और अगर कोर्ट कॉन्फिडेंट हो जाता है चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी पे, उसे लगता है कि चाइल्ड एकदम सच बोल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन ट्यूटर्ड और
हिज टेस्टिमनी डजंट सफ़र फ्रॉम मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस, तो उस पर रिलाई कर सकता है. लेकिन अगर उसे दिख जाता है चाइल्ड हैज़ बिन ट्यूटर्ड और हिज टेस्टिमनी हैज़ मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन, तब तो कोर्ट किसी भी विटनेस की तरह उसकी भी स्टेटमेंट पार्टली या फुली रिजेक्ट कर सकता है. ठीक है. देन वी कम टू आई विटनेस. अब आई विटनेस क्या होता है? आई विटनेस आपको पता है, आई विटनेस इज़ दी डायरेक्ट विटनेस हु ऑब्जर्व्स द इवेंट. ठीक है. वो स्टॉक विटनेस नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए. अभी स्टॉक विटनेस भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा. आई विटनेस क्या होता है? आई विटनेस इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वर ऑफ द इवेंट. सो आई विटनेस मस्ट बी केपेबल ऑफ हैविंग एडिक्वेट विजन and there must be light adequate enough to see and identify the persons involved in the event. Eyewitness states that he can see the happening which are proximate and not distant, and that he is capable of seeing and understanding the happening distinctly, and that there were no objects obstructing his vision. ये सारी चीज़ें होती हैं प्रूफ. जब वो कहते हैं ना आई विटनेस आता है कोर्ट में कि आई विटनेस अकाउंट्स की डिटेल दीजिए, तो कोर्ट ये भी चीज़ें देखता है कि कहीं अंधेरा तो बहुत नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आई विटनेस की जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या ड्यू टू सम ऑब्जेक्ट्स उसकी विजन तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुई. ये सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं. तो जब कोर्ट को पता चलता है कि आई विटनेस इज़ केपेबल ऑफ सीइंग एंड ही हैज़ सीन एन इवेंट विच वॉज प्रॉक्सिमेट टू हिम, नॉट वेरी डिस्टेंट, his vision was not obstructed, he was capable of understanding the event जो उसने देखा, तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है आई विटनेस की टेस्टिमनी को एक्सेप्ट करता है. ध्यान रखिए, आई विटनेस उस चीज़ को लेके डिपोज करता है जो उसने देखा, नॉट द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू दैट इवेंट. जो उसने देखा, जो उसने समझा, उसको लेके बताता है. देखने के बाद समझने की बात है. ठीक है. जो उसने इवेंट देख रहा है वो उसको समझ के डिपोज करता है, उसको लेके कोर्ट ऐसे आई विटनेस की टेस्टिमनी एक्सेप्ट करता है. तब इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आई विटनेस जो होता है जनरली ही शुड नॉट हैव एनी मोटिव टू लाई. और अगर ये देख लिया कोर्ट ने कि दी आई विटनेस इज़ एन इंडिपेंडेंट विटनेस, मतलब वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता और ही हैज़ नो रीज़न टू फॉल्सली इम्प्लीकेट द अक्यूज, तो उसका एविडेंस बड़ा पावरफुल हो जाता है. ठीक है. एंड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड unless there is a definite proof to the contrary, that eyewitness account is generally accepted and relied upon by the police, prosecutor, judges and even jurors in international scenarios. क्योंकि जूरी सिस्टम चलता है यूके और यूएसए में, तो वहाँ पे आई विटनेस अकाउंट की टेस्टिमनी बहुत आराम से रिलाई की जाती है. सो अगेन लेट मी रिएटरेट, the eyewitness is the one who saw the act, fact or transaction on which he testifies. A witness is able to provide a graphic account. An eyewitness is able to provide a graphic account of the attack on the deceased, and then he can be accepted as an eyewitness. We are assuming कि ये मर्डर केस की बात हो रही है. ठीक है. क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट में समझाना आसान होता है, पर ध्यान रखिएगा एविडेंस इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू क्रिमिनल लॉ, इसमें सिविल लॉ ज़्यादा आता है. ऑलराइट. तो एविडेंस आप क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट में समझिए, पर ध्यान रखिएगा इसका स्कोप सिर्फ क्रिमिनल लॉ तक नहीं है, सिविल लॉ में भी जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो एविडेंस ऑफ द आई विटनेस विल बी असेस्ड बाय इट्स वर्थ. अगर आई विटनेस की टेस्टिमनी में कॉन्ट्राडिक्शंस है, मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसकी कोई वेरासिटी नहीं है, एम्बेलिशमेंट्स हैं, इम्प्रूवमेंट हैं, और कोर्ट को फॉल्सहुड दिख जाती है, तो ऐसे में कोर्ट जो है उसकी टेस्टिमनी को उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं देता है, रिजेक्ट नहीं करता है टेस्टिमनी, क्रेडिबिलिटी नहीं देता है. ध्यान रखिएगा, इंडिया में कोई रूल नहीं है फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ओमनीबस. फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इज ओमनीबस का मतलब होता है कि एक बार झूठ बोल दिया तो मतलब सब कुछ चीज़ें झूठ बोल लो. ये प्रिंसिपल इंडिया में नहीं है. तो इंडिया में जजेस की ड्यूटी होती है टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड. तो अगर कोर्ट देखता है एक विटनेस की टेस्टिमनी इम्प्रूवमेंट हो रही है और एम्बेलिशमेंट हो रही है या कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है, तो क्रेडिबिलिटी जो है अफेक्ट हो जाती है. ठीक है. अगर मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एम्बेलिशमेंट्स हैं, तो क्रेडिबिलिटी नीचे जाएगी. अगर कोर्ट देखता है कि जो आई विटनेस का अकाउंट है वो corroborated है बाय मटेरियल पर्टिकुलर्स, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, और उसका जो अकाउंट है उसकी वेरासिटी इज़ टेस्टिफाइड बाय अदर एविडेंसेस, तो ऐसी सिचुएशन में जो आई विटनेस टेस्टिमनी है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. तो आई विटनेस की टेस्टिमनी को अप्रिशिएट करने के लिए ये जनरल रूल जो विटनेसेस पे अप्लाई होते हैं वो तो होते ही हैं, पर क्योंकि वो आई विटनेस है, उसने अपनी आंखों से कुछ चीज़ें देखी हैं,
तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए दो और चीज़ें देखी जाती हैं। वो क्या है? एक्यूरेसी ऑफ द विटनेसेस ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट विच ही डिस्क्राइब्ड and the correctness and the extent of that which he remembers and his veracity. ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं for the appreciation of the evidence of the eye witness. ठीक है, आई विटनेस पे आपको छोटा सा मुझे बताना था. Now we come to hostile witness. ठीक है, अभी हॉस्टाइल विटनेस कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है. इनफैक्ट अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स पे, ये एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है. बट नॉनदलेस आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको यही सब चीज़ें दिखेंगी. तो यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. ठीक है, इनफैक्ट अब एग्ज़ाम भी बाकी स्टेट्स के एडवांस हो रहे हैं और दिल्ली में तो ये बहुत नॉर्मल सा पैटर्न है ये सारी चीज़ें पूछना. तो आपको भी इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर होना होगा. So now we come to hostile witness. So in common law practice, a hostile witness means that the witness is hostile to the party who is presenting him. तो मान लीजिए मैं डिफेंस विटनेस हूँ या मैं प्रोसिक्यूशन हूँ, किसी भी साइड मुझे रख लीजिए, और मैं एक विटनेस को बुला रहा हूँ अपने केस को प्रूव करने के लिए. अब लेट अस सपोज वो मेरे खिलाफ गवाही दे दे. ठीक है, मैंने उसको बुलाया अपना केस प्रूव करने के लिए और उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी. तो ये ऐसा विटनेस हॉस्टाइल कहा जाता है. ठीक है, अ विटनेस हु डज नॉट सपोर्ट द केस ऑफ द पार्टी बाय विच ही इज समन्ड, फॉर विच ही इज समन्ड, ही इज टर्म्ड एज अ हॉस्टाइल विटनेस. अब कॉमन लॉ की डॉक्ट्रिन में ये बोला जाता है कि जनरली हॉस्टाइल विटनेस इज दैट एविडेंस is that witness who is not desirous of telling the truth at the instance of the party calling him, or there is an existence of hostile animus का मतलब intention, or there is existence of hostile animus to the party calling such witness. अब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 154 इससे डील करता है. ठीक है, अब इसमें कोर्ट्स के पास डिस्क्रेशन है that the court may allow a person who has called the witness to ask questions that can be put to him by a counsel in cross examination. तो मतलब जो एक पार्टी है, लेट अस सपोज एक हॉस्टाइल एविडेंस, एक हॉस्टाइल विटनेस उसके पास आता है, तो वो कोर्ट से परमिशन मांग सकती है कि वो उससे वही सवाल पूछ सके जो ऑपोजिंग काउंसिल पूछेगा क्रॉस एग्जामिनेशन में. ऑलराइट, ये जब डिस्क्रेशन अलाउ करता है कोर्ट, तो जनरली बोला जाता है कि कोर्ट ने विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया. पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको अभी बता दूं, वन विल डील विद सेक्शन 154 इन डिटेल, तो ये आपको बातें और समझ में आएंगी. अभी तो मैं एक ब्रीफली प्रिलिमिनरी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि हॉस्टाइल विटनेस जो होता है नेसेसरली फॉल्स विटनेस नहीं होता. यू हैव टू रिमेंबर, अ हॉस्टाइल विटनेस इज नॉट नेसेसरली फॉल्स विटनेस इन ऑल केसेस. जनरली आप प्रिज्यूम करते हैं कि अगर वो जिस पार्टी ने उसे बुलाया, अगर वो उसका केस सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसे ब्राइब दे दी गई हो, या ऑपोजिट साइड से वो डर के कारण ना एविडेंस दे रहा हो, या लेट अस सपोज उसकी दुश्मनी हो उस पार्टी से और दुश्मनी का बदला निकाल रहा हो एट द वेरी पेक्यूलियर टाइम. तो ये सारी चीज़ें जनरली अज्यूम की जाती है. लेकिन हॉस्टाइल एविडेंस ज़रूरी नहीं है हर केसेस में फॉल्स विटनेस हो. ठीक है, अ हॉस्टाइल विटनेस इज़ नॉट नेसेसरली अ फॉल्स विटनेस इन ऑल केसेस. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. ये लाइन आपको मेंशन करनी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि विटनेस आके जिस पार्टी ने उसे बुलाया उस पार्टी ने सच में क्राइम किया हो, अज्यूमिंग अक्यूज ने बुलाया, उस पार्टी ने सच में क्राइम किया हो, और डिफेंस विटनेस आके सच सच बता दे कि नहीं इन्होंने क्राइम किया था. तो भले ही जो अक्यूज्ड है हॉस्टाइल विटनेस का डिक्लेरेशन ले ले कोर्ट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्टाइल विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो बेकार हो गई और कोर्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. सिमिलरली मान लीजिए प्रोसिक्यूशन एक विटनेस को बुलाता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, और वो आके प्रोसिक्यूशन के खिलाफ गवाही दे देता है और कहता है कि अक्यूज ने कोई क्राइम नहीं किया था, मैंने देखा था. तो ऐसे में अगर प्रोसिक्यूशन ने लेट अस सपोज 154 की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव करके ये ऑर्डर ले भी लिया कि इनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए और मुझे परमिशन मिले कि मैं इनसे वो क्वेश्चन पूछूं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि विटनेस झूठ बोल रहा है. राइट, हो सकता है विटनेस सच बोल रहा हो. तो ध्यान रखिएगा,
हॉस्टाइल विटनेस इज़ नॉट नेसेसरली अ फॉल्स विटनेस जनरली, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है ऑपोजिट पार्टी ने ब्राइब कर लिया हो या चीज़ें हो गई हो, वरना कोई भी पार्टी क्यों बुलाएगी ऐसे विटनेस को जब वो जानती है कि वो उसका केस सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट समटाइम्स दे आर ट्रुथफुल पर्सन एज वेल, और हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी रिजेक्ट नहीं की जाती है, वो पार्टली रिलाई ऑन की जा सकती है बाय बोथ साइड्स। जो प्रोसिक्यूशन के फेवर में प्रोसिक्यूशन उस पर रिलाई कर सकता है, जो डिफेंस के फेवर में वो डिफेंस उस पर रिलाई कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टिमनी रिजेक्ट नहीं की जाती है उसकी। सो you can find that answer under section 154 itself. So when the evidence is given by such witness, it can be relied upon if it is relevant to determine guilt of the accused, and it can also be relied upon if it is relevant to determine the innocence of the accused. वो दोनों साइड से rely upon किया जा सकता है. The evidence of the hostile witness cannot be discarded as all the facts that he is deposing, if they are relevant, that those statements are admissible. कोर्ट इस बात पे नहीं डिस्कार्ड कर देता उसका एविडेंस कि वो हॉस्टाइल विटनेस हो गया है, ठीक है। द कोर्ट इन दिस सिचुएशन रिमेन्स अलर्ट दैट undue influence could have been exercised over such witnesses, and tries to find that by what reason the hostile witness is not supporting the case of the party by which he is brought. But if let us suppose the evidence of the hostile witness is corroborated in material particulars, or if the evidence of the hostile witness is very credible in the eyes of the court and he is sticking to that statement, then the court may even base conviction on it. Alright, now let me tell you some of the very popular reasons that why the witness turned hostile. Sometimes it is the absence of awareness. That is the very first reason. In olden times there was not any witness protection of scheme. Now there is. All right. In Mahendra Chawla versus Union of India, Supreme Court directed an all India witness protection scheme that has also been notified by the Home Ministry. अब वो witness protection scheme है, ये जजमेंट याद रखिएगा। पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है, witness protection scheme नहीं हुआ करती थी पहले। तो ऐसी सिचुएशन में जो witnesses थे ना, उनको धमकी दी जाती थी, मार दिए जाते थे, तो उनकी कोई सिक्योरिटी तो उनकी होती नहीं थी, तो वो कभी कभी डर या थ्रेट की वजह से अपना स्टेटमेंट बदल लेते थे। दूसरा ये था कि जो अक्यूज़्ड के पास राइट टू बेल है, जब राइट टू बेल उसे मिलता है तो कभी कभी वो क्या करता है, राइट टू बेल पे रिलीज़ होने के बाद वो विटनेसेस को जाके थ्रेटन करने लगता है कि मेरे खिलाफ गवाही ना देना वरना मैं कुछ कर दूंगा, या अक्यूज पर्सन ट्राइज टू एलिमिनेट देम। ऐसे सिचुएशन में विटनेस जो होते हैं कभी कभी अपनी गवाही से मुकर जाते हैं। तीसरा रीज़न क्या होता है कि इनसफिशिएंट रेन्यूमरेशन। अब कोर्ट उनको बुलाता है, उनका काम छोड़ने की वजह कहता है कि आप इस डेट को आओ, अपना काम छोड़ के आओ, हैं आना पड़ता है, कोर्ट ने समन दिया है, विटनेस को आना पड़ेगा। तब ऐसे में जो विटनेस होता है ना, उसको एक सर दर्द हो जाता है। वो कहता है कि अगर मान लो मैंने पार्टी का केस सपोर्ट किया तो अपोजिट पार्टी क्या करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेगी, मुझे फिर 10 बार आना होगा, ऑपोजिट काउंसिल मुझसे पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेगा, मेरी बेइज्जती होगी। ये सारी चीज़ें विटनेस के दिमाग में चलती है। आई हैव कंडक्टेड अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, आई हैव कंडक्टेड अ डिफेंस प्रोसिक्यूशन, आई एम वेल अवेयर अबाउट द सिचुएशंस की कैसे होती हैं। यहाँ पे विटनेस के दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती कि यार मेरी जॉब है, मुझे बुलाया जाएगा, मुझे छुट्टी लेनी होगी, फिर मुझसे अजीब व गरीब सवाल पूछे जाएंगे, और कोर्ट का एटमॉस्फेयर कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तो होता नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये उसके दिमाग में चलती हैं। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं कोर्ट वो भी नहीं देता, जबकि लॉ कहता है कि कोर्ट को देने चाहिए। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस दैट द कोर्ट हैज़ टू ऑर्डर टू द विटनेस। उस एक रेन्यूमरेशन देनी पड़ती है कि भाई जो उसका टाइम और एक्सपेंस आने जाने में खर्च हुआ है उसको कंपनसेट करता है थोड़ा बहुत कोर्ट। ये लॉ कहता है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। तो इस वजह से भी विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं कि कहते हैं कि यार एक बार में सरदर्द ख़त्म करो, जिस पार्टी ने बुलाया उसके फेवर में ना बोले तो ऑपोजिट पार्टी हमको हैरेस नहीं करेगी। ये जनरली इनके दिमाग में होता है, थ्रेट्स के अलावा भी। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रेगुलर एडजर्नमेंट। इतना एडजर्नमेंट होता है कोर्ट्स में, एक केस 5-5 साल 6-6 साल चल रहा है,
तो ऐसे में क्या होता है, जो विटनेस जो होते हैं ना, उनको तो भाई बहुत टेंशन होती है कि यार मुझे बार बार फिर बुलाया जाएगा फार डिस्टेंस से, 6 साल बाद पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, और फिर कोर्ट समन दे देगा, तो टेंशन होती है, क्योंकि समन पे नहीं आए तो आप पे अलग से सज़ा हो सकती है 174 ऑफ दी आईपीसी में। तो ऐसे में विटनेसेस जो होता है वो अवॉइड करता है ऐसी सिचुएशन, वो चाहता है कि भाई हमें क्रिमिनल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। तो रेगुलर एडजमेंट भी एक रीज़न है जो विटनेसेस को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम देयर स्पीकिंग देयर माइंड। तो हो सकता है उसकी वजह से भी वो हॉस्टाइल हो जाए। ये कुछ रीजंस हैं, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि रीजंस तो ज़्यादातर पर्टिकुलर विटनेस के दिमाग में ही होते हैं। तो ये सम ऑफ द रीजंस थे, ठीक है। नाउ वी कम टू रिलेटेड विटनेस। व्हाट इज रिलेटेड विटनेस? If any person who is appearing as a witness, either on behalf of the prosecution or defense, is related to the party summoning him, then he is addressed as related witness. आप जजमेंट्स पढ़ेंगे, आपको यही सब टर्म सुनने को मिलेंगे, रिलेटेड विटनेस, नेचुरल विटनेस, चांस विटनेस। तो आपको ये सारी चीज़ें अभी से समझनी है। ये एविडेंस एक्ट के स्टार्ट करने से पहले आपको समझनी होती हैं, जैसे आपको कोई आइडिया हो कि अच्छा ये चल के आ रहा है यहाँ पे, तो इनका एविडेंस कैसे ट्रीट किया जाता है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ इस पे ये है। द कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द टेस्टिमनी ऑफ द रिलेटिव विटनेस मस्ट बी एग्जामिन्ड विद कॉशन। इट इज मोर ऑफन दैन नॉट दैट अ रिलेशन वुड नॉट कंसील द एक्चुअल culprits and make allegation against an innocent person. The foundation has to be laid if the plea of false implication is made. In such cases, the correct perspective is to adopt a careful approach and analyze the evidence to find out whether it is cogent and credible. तो रिलेटेड विटनेस की जो टेस्टिमनी है कोर्ट थोड़ा कॉशन से लेता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हो सकता है वो क्या कहते हैं, वो अगर परिवार के बीच में एनिमिटी है, तो मान लीजिए डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट है, तो फैमिली का रिलेशन तो मोर ऑफन देन नॉट फैमिली वालों को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन कोर्ट ये कहते हैं कि ज़्यादातर कॉशन तो ठीक है, लेकिन डिसबिलीव का ग्राउंड नहीं है। कॉशन अलग चीज़ होती है, पर डिसबिलीव की बात नहीं हो रही है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोर्ट कहता है कि जब भी मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, लेट अस सपोज किसी ने एक फैमिली मेम्बर का मर्डर कर दिया और रिलेटेड विटनेस ने उसको देखा, आई विटनेस है वो, और वो रिलेटेड विटनेस भी है। तो ऐसे में जब कोर्ट के सामने ऐसा रिलेटिव विटनेस टेस्टिमनी दे रहा होता है, तो कोर्ट ये भी समझता है कि मोर ऑफन देन नॉट रिलेशन एक्चुअल कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, और वो इनोसेंट पर्सन पे एलिगेशन नहीं लगाएगा। भाई वो इनोसेंट पर्सन पे क्यों एलिगेशन लगाएगा? वो तो उनके खिलाफ गवाही देगा ना जिन्होंने एक्चुअली क्राइम किया है। लेट अस सपोज फैमिली में मर्डर हो गया, एक रिलेटिव ने देख लिया, अब प्रोसिक्यूशन हुआ, जिसने मर्डर किया वो अरेस्ट हुआ, तो रिलेटेड विटनेस जब गवाही देगा तो ऐसी सिचुएशन में वो जनरली एक्चुअल कल्प्रिट को बचने नहीं देगा और ना इनोसेंट पर्सन को ज़बरदस्ती फंसाएगा। तो कोर्ट्स यही कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में देखा जाना चाहिए कि जो एविडेंस है कोजेंट है या क्रेडिबल है या नहीं। और अगर डिफेंस को लगता है कि फॉल्सली इम्प्लीकेट उसे किया जा रहा है, तो उसको उसकी फाउंडेशन पहले ही ले करनी होगी, उसको ये प्ली पहले ही लेनी होगी और फिर एविडेंसेस के थ्रू प्रूव करना होगा कि क्यों फॉल्स इम्प्लीकेशन एक रिलेटेड विटनेस उसको करेगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट, इट इज़ वेरी एसेंशियल। अब इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, राजा गौंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इसमें 302 का केस था, ठीक है। अब इसके कंटेक्स्ट में जो कन्विक्शन हुआ था इस केस में, दैट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटेड विटनेस, और सुप्रीम कोर्ट से भी वो अपहेल्ड हुआ था। डिस्प्यूट ओरिजिनली था भाइयों का ओवर अ पीस ऑफ लैंड विच इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मर्डर केस। हो जाते हैं लैंड डिस्प्यूट्स इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ मर्डर केस। इस पे रिलेटिव विटनेस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। क्या बोली? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट एवरी विटनेस हु इज रिलेटेड टू द डिसीज्ड कैन नॉट बी सेड टू बी एन इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस एक अलग चीज़ होती है, मैं इसी के बाद आऊँगा उस पर। एवरी विटनेस हु इज रिलेटेड टू डिसीज्ड कैन नॉट बी सेड टू बी एन इंटरेस्टेड विटनेस हु विल डिपोज फॉल्सली टू इम्प्लीकेट द अक्यूज्ड।
statement of every related witness cannot, as a matter of rule, be rejected by the courts. Evidence of close relatives cannot be excluded solely on the ground that they are interested witnesses. It is the duty of the court to scrutinize the evidence of such witnesses very carefully, and if there is any doubt as regards the trustworthiness, the court may discard their evidence. Ordinarily, a close relative would be the last person to screen the real culprit and falsely implicate an innocent person. Hence, the mere fact of relationship cannot be a ground for rejecting the testimony of the witness. Credibility of the witness is not affected by the relationship. When the statement of the witness, who are parties known to the affected party, is credible, reliable, trustworthy, and admissible in accordance with the law and corroborated by the other evidence, either documentary, direct, or circumstantial, then there would hardly be any reason for the court to reject such evidence. Then in these situations, his evidence can be relied upon. Alright, so that is the position of law relating to related witness. Related witness कैसा है कि he is in one way or the other related to the party, either through blood ties or through legal ties. So next in point is interested or partisan witness. Interested witness और partisan witness, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी टर्म्स चेंज करके बात करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्टेड या पार्टीसन विटनेस क्या होता है. एन इंटरेस्टेड और पार्टीसन विटनेस मीन्स अ पर्सन who desires to falsely implicate the accused relative, not necessarily he has an axe to grind against the accused person, but because of the reason that he wants to get something out of it. Then it could be because he is interested in the outcome of the suit, or he is interested in the outcome of the criminal prosecution. Okay, so that person is called an interested or partisan witness. So it means that a person desires to falsely implicate the accused person, and he is interested in the outcome of the criminal prosecution or civil suit. तो यहाँ पे फॉल्स इम्प्लीकेशन का मैटर मेन है. ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैटर कौन सा मेन है, फॉल्स इम्प्लीकेशन का. और एक रिलेटिव इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटरेस्टेड विटनेस, ये बात याद रखिएगा. मेरे लिए बिकॉज अ पर्सन रिलेटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो इंटरेस्टेड विटनेस है कि वो फॉल्सली इम्प्लीकेट करेगा ही. वैसे ही इंजर्ड विटनेस को भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिकॉज इज़ इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द सूट तो वो इंटरेस्टेड विटनेस हो गया, है ना. अब मान लीजिए किसी को चोट लगी, मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, गोली पड़ी है विटनेस को, वो आके डिपोज करता है एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो क्या डिफेंस काउंसिल ये कह देगा ये तो इंटरेस्टेड विटनेस है? नहीं, यहाँ पे वो इंजर्ड विटनेस है क्योंकि उसे चोट लगी है, तो उसका एविडेंस कोर्ट उस चीज़ पे डिटरमाइन करेगा. एक इंटरेस्टेड या पार्टीसन विटनेस वो विटनेस होता है जो जिसकी प्राइमरी डिज़ायर क्या है, टू फॉल्सली इम्प्लीकेट दी अक्यूज पर्सन. कि लेटर सपोज कोई लैंड डिस्प्यूट है, तो अगर मान लो फॉल्सली इम्प्लीकेट किया तो उसको लगता है कि अगर इसको इस केस में फंसा देंगे तो मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो ये इंटरेस्टेड विटनेस हुआ. ठीक है, यहाँ पे वो सच झूठ की परवाह नहीं कर रहा, यहाँ पे वो सच नहीं बोल रहा, वो वहाँ पे इस इंटेंशन से आया है झूठ बोलने कोर्ट में क्योंकि उसका एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है अक्यूज को फंसाने को लेके. ठीक है, अब देखिए मैं अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, पर इंटरेस्टेड विटनेस दोनों साइड से हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा. मैं अगर कोई एक पॉइंट लूँ, जैसे अक्यूज की बात कर रहा हूँ विटनेसेस के केस में, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये इट गोज़ बोथ वेज. क्या ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही साइड होता है, इट गोज़ बोथ वेज. सो हाउ द इंग्लिश लॉ डिक्शनरी डिफाइंस अ विटनेस एंड इंटरेस्टेड विटनेस, वो बोलती है कि अ विटनेस इन अ ट्रायल वो हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द मैटर एट हैंड can be termed as interested witness. An interested witness is the one who has some kind of a material stake in the outcome of the case and he is not an unbiased witness. ठीक है, तो अब इन सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, इसमें भी इसका एविडेंस रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जाता है. इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कोर्ट कभी भी एज अ जनरल रूल एविडेंस रिजेक्ट नहीं करता, कोर्ट हमेशा क्लोजली स्क्रूटनाइज करता है. सो इस पे एक केस जान लीजिए, तकदीर शामसुद्दीन शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. अब इसमें एपेक्स कोर्ट कहता है द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इंटरेस्टेड postulates that the witness must have some direct interest in having the accused somehow or the other convicted for some other reasons. It is the settled position that the evidence of the interested witness is highly unreliable and some of them cannot be accepted without corroboration.
ठीक है, ये प्रिंसिपल है. A close relative is usually a natural witness or relative witness. He is not considered as an interested witness as he does not have a personal interest or material gain in becoming an interested witness. Second point, a 4 judges bench of apex court in Masalti versus State of Uttar Pradesh observed that evidence of an interested or partisan witness has to be weighed by the court very carefully, but it would be unreasonable to contend that evidence given by the witness should be discarded only on the ground that it is the evidence of the partisan or interested witness. The mechanical rejecting of such evidence on the sole ground that it is a partisan would invariably lead to failure of justice. मैं partisan witness का मतलब होता है interested witness की बात हो रही है, ठीक है. partisan, interested, you need to use these words interchangeably. तो in Masalti versus State of Uttar Pradesh, 4 judges bench of apex court observed the very same thing. ठीक है. So let me reiterate the position of law, because you should have this position burned in your mind. You should remember this, that it has to be weighed carefully, it has to be scrutinized carefully, but it cannot be discarded merely on the ground that it is a partisan or interested witness. The mechanical rejection of such evidence on the sole ground that it is partisan would lead to a failure of justice that has been held by the apex court. Similarly, in state of Haryana versus Shakuntala, the apex court elaborated the term interested witness as having some direct or some interest in the accused, and he is actually giving evidence against the accused in order to convict him due to animus or some other oblique motive. ठीक है. Similarly, in Shahabuddin versus State of Assam, it was elaborated that an interested witness is the one who is desirous of falsely implicating the accused with an intention of ensuring their conviction. Alright. Similarly, in State of Bihar versus Shaukat Mia, again, the apex court said that it is that credibility of a witness cannot be doubted merely because he is an interested witness. Evidence of interested witness has to be tested with caution, has to be scrutinized closely. Moreover, an interested witness who is the relative of the victim would be the last person to falsely implicate the accused. ये भी प्रिंसिपल है. तो जनरली ये जब आप वर्ड सुनते हैं ना, इंटरेस्टेड या पार्टीशन विटनेस, ये डिफेंस काउंसिल हमेशा उनके पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं जो हो सकता है रिलेटिव हो. वो कहेंगे ये फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रहे हैं, झूठा केस लगा रहे हैं, अक्यूज को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं. ठीक है. अक्सर रिलेटिव के केस में यू विल फाइंड डिफेंस लेबलिंग द प्रोसिक्यूशन विटनेस हु हैपन टू बी द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड एज इंटरेस्टेड विटनेस. उसको लेके कोर्ट कहता है कि वो रिलेटिव विटनेस हैं, वो नेचुरल विटनेस हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो इंटरेस्टेड विटनेस ऑटोमेटिकली हो गए. ऑलराइट. अब एक चीज़ होती है ट्रैप, डेकॉय या स्पाई विटनेस. अब इस पे आपको एक केस बता देता हूँ, ये एकदम छोटा सा पॉइंट है. आपने देखा होगा कि कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सिविल ड्रेस में जाके एक मान लीजिए क्रिमिनल गैंग को ज्वाइन करेंगी, या लेट अस सपोज एक रैकेट बस्ट करना है तो वो रैकेट में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना. तो ऐसे में ये जो पर्सन्स होते हैं दे आर देयर टू ट्रैप सच पर्सन्स. ऐसे रैकेट का वांडा फोड़ करने के लिए, रैकेट गेयर्स को पकड़ने के लिए और गैंग को एक्चुअली होल्ड करने के लिए वो गैंग में पार्टिसिपेट भी करने लगते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो गैंग का पार्ट है, पर वो होते नहीं हैं. वो होते हैं पुलिस फोर्स के, वो होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के. तो जब एक्चुअली में मान लीजिए फिर पुलिस बाकी लोगों को पकड़ती है, फिर प्रोसिक्यूशन होता है, तो जिस पर्सन ने उस गैंग में पार्टिसिपेट किया था उसको प्रोड्यूस करती है. ऐसे पर्सन को ट्रैप, डिकॉय या स्पाई विटनेस भी कहते हैं. ठीक है. अब इसकी क्या पोजीशन है? अब इसकी पोजीशन आप ये जान लीजिए कि इन अमृत लाल हज़ारा वर्सेस किंग एम्परर में ये बोला, इनको क्राउन विटनेस भी कहा जाता है, ये बोला गया था द विटनेस फॉर द क्राउन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट आर प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द चैनल थ्रू विच दे हैव रिसीव्ड और कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन. बट अ डिटेक्टिव कैन नॉट रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन एज टू वेयर ही वॉज एम्प्लॉयड.
The defense is not entitled to elicit from the individual prosecution witnesses whether he was a spy or an informer, or to discover from the police official the names of the person from whom they have received the information. On this point, a Supreme Court judgment of Major Bursey versus State of Bombay emphasized that a trap witness could be at least be equated with a partisan witness. तो ट्रैप विटनेस की जो इक्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीसन विटनेस के बराबर पाई है और बोला है कि हिज एविडेंस वुड नॉट बी एडमिसिबल अनलेस हिज एविडेंस इज corroborated in material particulars. हालांकि इस जजमेंट में एडमिसिबल वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है क्योंकि कोर्ट एक्चुअली मीन कर रहा है कि हिज एविडेंस इज़ नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, पर कभी कभी कोर्ट अलग अलग टर्म्स यूज़ कर देता है. ध्यान रखिएगा, जजमेंट्स आर नॉट टू बी रेड एज स्टैट्यूट. तो यहाँ पे एक्चुअली कोर्ट मेंट दैट द ट्रैप विटनेस का जो एविडेंस है वो पार्टीसन विटनेस के एविडेंस के जैसा माना जाएगा, और जो कोर्ट है उस पर तभी रिलाई करेगा जब वो corroborate करे मटेरियल पर्टिकुलर्स में. कोर्ट कहता है इस केस में कि ट्रैप विटनेस कैन बी कंसिडर्ड एन इंटरेस्टेड विटनेस एज रिगार्ड्स टू देयर एविडेंस. एज अ मैटर ऑफ लॉ इट इज़ नॉट करेक्ट टू से that the evidence cannot be accepted without corroboration. However, as a rule of prudence, not the rule of law, as a rule of prudence, या अब रूल ऑफ प्रैक्टिस भी कह लीजिए, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जनरली चाहता है अपने दिमाग से हेजिटेशन हटाने के लिए कि भाई हम इनके एविडेंस पे तभी रिलाई करेंगे जब मटेरियल पर्टिकुलर्स में corroboration हो उनका. ये रूल ऑफ प्रूडेंस या प्रैक्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है. ठीक है, अब ये रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ कहीं प्रिस्क्राइब नहीं करता कि यू हैव टू हैव एविडेंस ऑफ दिस पर्सन corroborated इन मटेरियल पर्टिकुलर्स. लेकिन रूल ऑफ प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि कोर्ट एज अ मैटर ऑफ नॉर्म इसमें corroboration मांगते हैं. अब डिकॉय विटनेस को या ट्रैप विटनेस को लेके जब पुलिस ट्रैप विटनेसेस लगाती है किसी एक पर्सन को किसी क्राइम में ट्रैप करने के लिए, तो जनरली एविडेंस एक्ट का सेक्शन 125 इंटरप्ले में आता है. अच्छा, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 125 क्या कहता है? वो कहता है नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेयर ही गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वेयर ही गॉट द इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू. तो एक छोटा सा प्रिविलेज उनके फेवर में होता है ना. अब ये चीज़ें जो हैं डिफेंस को थोड़ा प्रॉब्लम देती हैं, क्योंकि देखिए एक तो वो कंपेल कर नहीं सकता कि भाई उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली. डिफेंस अब कंपेल कर नहीं सकता क्योंकि 125 बीच में आ रहा है. अब क्योंकि डिफेंस उसको कंपेल नहीं कर सकता डिकॉय, ट्रैप या स्पाई विटनेस को, तो अब उसको ये दिक्कत होती है कि यार अब मैं अक्यूज के फेवर में आर्गूमेंट कैसे करूँगा, या उसके फेवर में फैक्ट कैसे एलिसिट करवाऊँगा, या उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे हटवाऊँगा ट्रैप विटनेस की. तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है ना, कोर्ट जनरली मांगता है कि इनके जो एविडेंस हैं वो corroborate होने चाहिए मटेरियल पर्टिकुलर्स में, क्योंकि लॉ इनके फेवर में, क्योंकि लॉ का सेक्शन 125 एविडेंस एक्ट कहता है कि इनको कंपेल नहीं करवाया जा सकता कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि अक्यूज्ड यहाँ पे आएगा है, या अक्यूज्ड इज़ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्ट. ठीक है, ट्रैप बनाने के लिए तो पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि अक्यूज्ड पर्सन विल एक्चुअली फॉल इन टू द ट्रैप और ही इज़ प्रीडिस्पोज्ड टू द सेडक्शन ऑफ सच ट्रैप. यही सारी चीज़ें पहले जान के ही ऐसा पुलिस कर सकती है. ऐसे ही कोई ऑटोमेटिकली नहीं ट्रैप हो सकता. पहले थोड़ा एविडेंस होता है कि अक्यूज्ड का पैंचेंट है इस साइट पे और अक्यूज्ड पर्सन के पास टेंडेंसी है कि वो ऐसी हरकत करेगा, और फिर पुलिस ना पूरा एकदम तैयारी करके बैठती है कि हाँ ये यहाँ पे आएगा, इसको वहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे. दिक्कत ये है कि फंसा तो लेती है पुलिस, लेकिन 125 ऑफ द एविडेंस एक्ट कहता है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसे इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि ऑफेंस कमिट होने वाला है. ठीक है, कि वेयर ही गॉट दैट इन्फॉर्मेशन कि ऑफेंस कमिट होने वाला है. तो अब इन सारी चीज़ों को लेके ट्रैप विटनेस के फेवर में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको कंपेल नहीं करवाया जा सकता पुलिस को, या उस ट्रैप विटनेस को कंपेल नहीं करवाया जा सकता कि उसको कैसे इन्फॉर्मेशन मिले कि अक्यूज्ड यहाँ पे आएगा. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इनकी जो टेस्टिमनी होती है इसमें थोड़ा एज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस corroboration होना चाहिए. और साथ में ये भी बोला है कि एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस जो डिकॉय, ट्रैप या स्पाई विटनेसेस हैं इनको इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में रखना चाहिए. ठीक है, सो
दैट वॉज प्राइमरली पोजिशन. अब देखिए, मैं बार बार आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, ये रूल ऑफ प्रैक्टिस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है. क्योंकि पहली बात तो लॉ प्रिस्क्राइब नहीं करता, पर इसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो है प्रकाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें कोर्ट ने बोला कि वेयर द सर्कमस्टेंसेस परमिट्स a court may refuse to act upon a corroborated testimony of the trap witness. On the other hand, अगर कोर्ट को लगता है कि ट्रैप विटनेस की टेस्टिमनी स्टर्लिंग लेवल की है, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी की है, तो कोर्ट चाहे तो उस टेस्टिमनी पे रिलाय भी कर सकता है. अब ये भी पोजीशन है. तभी मैंने बोला एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रैक्टिस जनरली कोर्ट करॉबरेशन मांगता है. लेकिन अगर कोर्ट ही सेटिस्फाई हो गया है टेस्टिमनी से, लेट अस सपोज ट्रैप विटनेस की, उसे पूरी तरीके से यकीन है, वो पूरी तरीके से मानता है कि जो टेस्टिमनी जो ट्रैप विटनेस की है वो क्रेडिबल है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बिना करॉबरेशन के भी रिलाय कर सकता है अगर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों. ध्यान रखिएगा, कट एंड राइट फॉर्मूला इसमें नहीं होता. ये सारी चीज़ें केस बाय केस बेसिस पे डिटरमाइन होती हैं और ये प्रिंसिपल्स हैं. ये प्रिंसिपल स्टैटिक रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल केस पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस से दिखता है. सिमिलरली इन विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑल्सो अ पोजिशन वॉज हेल्ड दैट अ ट्रैप विटनेस इज एन इंटरेस्टेड विटनेस एंड हिज टेस्टिमनी टू बी एक्सेप्टेड and relied upon requires corroboration, and the corroboration would depend upon the fact and circumstances, the nature of the crime, and the character of the witness. Further, there is no invariable rule that the evidence of the witness of the reading party must be discarded in absence of any dependent corroboration. मतलब ये नहीं कि corroboration नहीं हुआ तो आप evidence admit ही ना करें या बाहर फेंक दें. That is not the position. ये कहते हैं कि corroboration is a rule of practice होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब इन्हें कि डिस्कार्ड कर दें. थर्ड इज दो अ ट्रैप विटनेस इज नॉट एन अप्रूवर, ही मस्ट बी ट्रीटेड एज वन. ऑलराइट, बट ही इज एटलीस्ट एन इंटरेस्टेड विटनेस. तो सिंस ही इज इंटरेस्टेड टू सी दैट द ट्रैप लेड बाय हिम सक्सीड्स, then he can be equated with an interested or partisan witness, and it would not be safe to rely upon such evidence without having corroboration on the material particulars. तो ये 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके बताए. अब प्रकाश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आपको उस केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्टिमनी अगर स्टर्लिंग कैपेसिटी की कोर्ट पा लेता है तो ऑफ कोर्स इट कैन डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ corroboration. एट द एंड ऑफ अ डे जितने भी एविडेंस, जितने भी विटनेसेस की टेस्टिमनी है, वो सारी चीज़ जाके एक चीज़ पर रुकती हैं कि क्या जज मानता है उनकी बात या नहीं, क्या जज उनकी टेस्टिमनी या उस एविडेंस को क्रेडिबल मानता है या नहीं. अगर मान लेता है तो भाई केस एस्टैब्लिश हो गया, अगर नहीं मानता है तो केस डिसमिस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू इज मटेरियल विटनेस. व्हाट इज अ मटेरियल विटनेस? मटेरियल विटनेस इज अ पर्सन who apparently has information about the subject matter of a lawsuit criminal prosecution which is significant enough and its effect and its information is significant enough to have an effect on the outcome of the case or trial. तो ऐसा मटेरियल विटनेस जो होता है उसको कोर्ट जनरली बहुत प्रेसिडेंस देता है. वो चाहता है कि भाई ऐसा व्यक्ति आके कोर्ट में टेस्टिफाई करे और जितनी जल्दी हो सके टेस्टिफाई करे. तो जनरली कोर्ट्स को ये मैंडेट होता है कि वो सारे रीजनेबल इफेक्ट करें कि ऐसा मटेरियल विटनेस आए और कोर्ट में आके गवाही दे. अब मटेरियल विटनेस फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पर डिटरमाइन होते हैं. अब क्रिमिनल ट्रायल में ऐसा मान लीजिए कि कोई आई विटनेस है, ठीक है, उसने सारा अकाउंट देखा, तो वो आई विटनेस मान लीजिए डिपोज करता है कोर्ट में और उसका एविडेंस बहुत अच्छी कैपेसिटी का है और उसका एविडेंस ऐसा है जो पूरे ट्रायल का कोर्स बदल सकता है, तो मटेरियल विटनेस भी होगा. ठीक है. अब देखिए जो टर्म्स में बता रहा हूँ ना, आई विटनेस, पार्टीशन, रिलेटिव, मटेरियल विटनेस, ये कभी कभी क्या करते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं. एक आई विटनेस मटेरियल विटनेस भी हो सकता है और एक आई विटनेस इंटरेस्टेड विटनेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. ये टर्मिनोलॉजीज बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं कि किस सेंस में क्या टर्म यूज़ होना चाहिए. तो मटेरियल विटनेस एक ऐसा विटनेस होता है जिसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट मैटर को लेके या फैक्ट एंड इशू को लेके जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और जो इतना सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है जो क्रिमिनल ट्रायल के या किसी केस के सिविल सूट के आउटकम को अफेक्ट करेगा.
So the witnesses who speak about the crucial facts or any of the issue in the suit or prosecution are called the material witness. Failure to examine material witnesses in civil cases affect the chances of success of the parties. Failure to examine the material witnesses by the prosecution in a criminal case may result in clean acquittal of the accused. Persons who are present at the scene of offense in criminal cases and the persons who are associated with the transactions in the civil matters must be produced as a witness, since the examination of such witness is mandatory. Material witness means a witness in relation to the subject matter of the litigation and does not mean material in relation to the parties. तो यहाँ पे जो material witness है उसको मटेरियल इन द सेंस ऑफ लिटिगेशन के सेंस में लिया गया कि फैक्ट एंड इशू को लेके उसका टेस्टिमनी बड़ी मटेरियल है, उस सेंस में नहीं लिया गया है कि वो पार्टीज को लेके बड़ा मटेरियल रिलेशन में. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मटेरियल विटनेस बोला जाता है. तो मान लीजिए कि एक क्राइम हुआ, क्राइम सीन पे 4 विटनेस थे, चारों लोगों ने क्राइम देखा. अब प्रोसिक्यूशन उन्हीं को नहीं एग्जामिन करता तो कोर्ट तो बोलेगा आपने मटेरियल विटनेस को क्यों नहीं बुलाया जिन्होंने एक्चुअल में क्राइम देखा है. तो अगर मान लीजिए उन मटेरियल विटनेस को वो प्रोसिक्यूशन नहीं बुलाता है तो कोर्ट बोलेगा कि भाई देन आई हैव अ डाउट, ऐसे में वो अक्यूज को अक्विट कर देगा. सिमिलरली मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपने विटनेस किया, मान लीजिए मेरे और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, आप लोग सब हैं कॉन्ट्रैक्ट को विटनेस कर रहे हो, आपने पूरा ट्रांजैक्शन विटनेस किया. अब एट द एंड ऑफ द डे लेट अस सपोज उस ट्रांजैक्शन को लेके एविडेंस देना है कोर्ट में. अब लेट अस सपोज आप ही को नहीं बुलाया जाता, इवन दो यू हैव विटनेस दोस ट्रांजैक्शंस, तो कोर्ट आपसे बोलेगा कि कोर्ट मुझसे बोलेगा कि जब इतने लोगों ने देखा है तो आप उनको क्यों नहीं एग्जामिन कर ले. तो जब मैं उनको एग्जामिन नहीं करूंगा तो कोर्ट के दिमाग में सस्पिशन हो जाएगा कि वो मटेरियल विटनेस को इसलिए नहीं एग्जामिन कर रहा है क्योंकि वो हो सकता है इसका केस सपोर्ट ना करें. तो ऐसे में कोर्ट या तो चाहे तो 311 में खुद बुला ले मटेरियल विटनेसेस को, या तो वो सीधे कह दे कि भाई आपका केस प्रूव नहीं हो रहा, डिसमिस कर देगा फिर कोर्ट केस. क्योंकि जिन पार्टीज़ ने वो ट्रांजैक्शन सिविल मैटर में देखा है, जिन पार्टीज़ ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखा है, एग्जीक्यूट होते हुए देखा है या कंसिडरेशन पे होते हुए देखा है, जब उन्हीं को एग्जामिन नहीं कर रहा तो मतलब मैं मटेरियल विटनेस को ही एग्जामिन नहीं कर रहा. तो और यहाँ पे मटेरियल विटनेस किस सेंस में, material witness in the sense in relation of the subject matter of the litigation. ठीक है, not in relation to the parties. subject matter के litigation के sense में material witness की बात हो रही है. अब material witness को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट बोलता है कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ material witness is not the mathematical formula for discarding the weight of the testimony available on the record. Whether the witnesses were available for being examined in the court and were still withheld by the prosecution is a fact to be established. Non-examination of the material witness is not a mathematical formula for discarding the weight of the testimony available on the record. अब कोर्ट ये भी कह रहा है कि और भी अगर टेस्टिमनी है जो केस प्रूव कर रही हैं और एक दो मटेरियल विटनेस को अगर नहीं एग्जामिन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोसिक्यूशन का या दूसरी पार्टी का केस बाहर फेंक दें. आपको देखना होगा कि अगर केस बाकी टेस्टिमनी से प्रूव हो रहा है या बाकी एविडेंस से प्रूव हो रहा है तो हो सकता है कि जो पार्टीज़ हैं वो मटेरियल विटनेस को सीन में ना लाना चाहती हों, लेकिन अगर पार्टीज़ मटेरियल विटनेस को सीन में लाती हैं तो कोर्ट कहता है इसी केस में कि तब मटेरियल विटनेस के स्टेटमेंट को पे रिलाय करना चाहिए, बिकॉज he is the witness of such transaction and he has the adequate information on the subject, which is the main issue in the litigation. So material witness ought to be relied upon since he is capable of narrating the sequence of events that has resulted in commission of the offense. Now we come to another case law on this point, Mohit versus State of Haryana. In this case, the court held that the material witness was not examined by the prosecution, though he was associated with the investigation. Now during the course of the evidence he was summoned, and when the prosecution was asked by the court that why never you called such material witness, and the prosecution explained that such material witness has been won over by the accused person. तो कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए बोला कि ठीक है ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, मटेरियल विटनेस को भी खरीदा जा सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि it is not necessary for the prosecution to examine every witness relating to the certain occurrence.
However, the probative value of other witness is not affected if the material witness is not examined. अगर मान लीजिए मटेरियल विटनेस को किसी कारणवश नहीं एग्जामिन किया गया और उसकी एक्सप्लेनेशन कोर्ट को दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के विटनेस टेस्टिफाई कर रहे हैं उनकी पोजीशन अफेक्ट हो जाती है. ये ध्यान रखिएगा. इट डज नॉट मीन दैट एवर. अगर मान लीजिए कोई और विटनेसेस हैं जो आके टेस्टिफाई करते हैं प्रोसिक्यूशन के फेवर में, या कोई और विटनेसेस हैं जो हो सकता है मटेरियल हो, लेट अस सपोज 4 मटेरियल विटनेसेस हैं और 2 को प्रोसिक्यूशन बुलाता है और 2 को नहीं बुलाता, तो अगर वो 2 आके डिपोज कर रहे हैं तो उनकी टेस्टिमनी इस बात से अफेक्ट नहीं होगी कि बाकी के 2 मटेरियल विटनेस को क्यों नहीं बुलाया. ठीक है, उनकी टेस्टिमनी उन्हीं के स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी. ठीक है, और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से देखी जाएगी, इस बात पे नहीं कि बाकी मटेरियल विटनेस को नहीं एग्जामिन किया. देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ. जब क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन का, लेट अस सपोज, जब ये जानना है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, किस तरीके से की गई, तो मटेरियल विटनेस कौन होगा इस चीज़ को लेके? पुलिस ऑफिसर होगा, आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा. तो नगीना शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बात की गई कि investigating officer is a material witness as he investigates the case. He maintains a case diary. He goes to the place of occurrence. He sends the dead body for post-mortem. He prepares the inquest report. He also sends the injured for medical examination, and then he gets the post-mortem report. He collects the material and the evidence for the prosecution so that the conviction is outrightly based on it. Then it is he who has to explain each and every step of the action at every stage of the investigation. And his objective findings will become relevant for the prosecution as well as defense. Thus, investigating officer is material witness whose examination cannot be ignored, and the court cannot collect the material for conviction of an accused from the investigation expert or the case diary unless such investigation officer has been examined as a witness. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आईओ को आना चाहिए, डिपोज करना चाहिए कि भाई जब क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया, अक्यूज के खिलाफ क्या क्या एविडेंस मिला, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. वही आके तो कोर्ट में बताएगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, क्या मटेरियल कलेक्ट किया, पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा, डेड बॉडी कहाँ पे मिली, कितने लोगों का 161 सीआरपीसी में बयान लिया, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब उसके लिए कोई एक्सपर्ट विटनेस नहीं लाएगा प्रोसिक्यूशन, उसके लिए आईओ को ही लाना पड़ेगा. आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्हीं को लाना पड़ेगा. नाउ दैट इज़ वेरी एसेंशियल. अब मटेरियल विटनेस सिर्फ आईओ नहीं होता, मटेरियल विटनेस और भी लोग हो सकते हैं. अब मटेरियल विटनेस एक आई विटनेस भी हो सकता है, ठीक है, जिसने डायरेक्टली क्राइम देखा, वो भी मटेरियल विटनेस हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा, मटेरियल विटनेस की डेफिनेशन एक है. क्या है? मटेरियल विटनेस इज द वन वो स्पीक्स अबाउट द क्रूशियल फैक्ट्स और एनी इशू इन सूट और प्रोसिक्यूशन. ठीक है, एंड हिज एविडेंस इज सिग्निफिकेंट एनफ टू हैव इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द केस और ट्रायल. इस चीज़ को लेके अवेयर रहिएगा. ठीक है, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स में बताऊंगा. मैं ज़्यादा चाहता नहीं कि ओवर सैचुरेशन हो जाए तो फिर ग्रास्पिंग पावर में इफेक्ट पड़ेगा आपकी. तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज जितनी भी चीज़ें बताई इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए. ये प्रिलिमिनरी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं प्रैक्टिकली एविडेंस एक्ट को समझने के लिए. ठीक है, देखिए बेयर एक्ट के सेक्शन कोई भी पढ़ सकता है, पर बेयर एक्ट के सेक्शन समझ नहीं सकता. आप सेक्शन पढ़ लेंगे, सेक्शन रट सकते हैं, पर सेक्शन समझना अलग बात हो जाती है. सेक्शन अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा अलग बात हो जाती है. ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और ये कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं. कंसेप्ट्स पे क्लियर रहेंगे तो सारी चीज़ आ जाएगी. कंसेप्ट्स खराब हुए सब खराब हो जाएगा. ऑलराइट, सो रोट लर्निंग इज़ नॉट द वे, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल दैट इज़ द वे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, you do not have to memorize each and every case law. Important case law locus classicus आपको memorize करने होंगे. जैसे circumstantial evidence में आपको शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा, locus classicus है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जितनी भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए आपको सारे याद करने हैं. आपको प्रिंसिपल्स याद करने हैं, दे आर मोस्ट एसेंशियल. जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखने. केस लॉ का याद मेमोराइज करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि केस लॉज बदलते रहते हैं. मतलब केस लॉ के प्रिंसिपल नहीं बदलते. अब एक कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स में बताता है, वो कंसेप्ट को रीइटरेट करता रहता है, लगातार बताता रहता है.
तो आप उस केस लॉ को लेके कई जजमेंट्स याद कर सकते हैं, पर कंसेप्ट वही रहता है, उसी कंसेप्ट को कोर्ट डिफाइन कर रहा होता है। आप अक्सर देखेंगे मैं कैटेगरी ऑफ जजमेंट्स को लेके आपको एक पोजीशन दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लॉ सेटल्ड है और देखिए लॉ कितनी बार रीइटरेट और फॉलो हो रहा है। तो जब वो ऐसे चलता है तो आपको कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान रहेंगे, यू विल पास ऑल द एग्जामिनेशंस विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड इफ यू आर क्लियर ऑन द कंसेप्ट then you have the practical capacity to appreciate, analyze and understand Indian Evidence Act practically। तो प्रैक्टिस भी इससे अच्छी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।